कैसे जख्म दिल के सुगरा रात तक ही दी है वो दुखी बहना, तुझको बीमार ने बुलाया है वाना सुगरा, क्या गम ये दिल से लगाऊं मैं कैसे, गम ये दिल से लगाऊं मैं कैसे तेरा जहाँ पे जगह જોઈ રહ્યા છે એ જગ્યા નામ છે શેર ફિઝા। શેર એટલે કે લાયન, શેર એટલે કે લીઓ, આપણે જે ફેન્સી અંદર લીઓ બોલવામાં આવે છે। ઇમામે હસન ઇમામ હુસૈન સલામ દુશ્મનામાં એક લીઓ એક લાયનને પાળ્યા હતા। જ્યારે નાના હતા ત્યારે કોઈ લાગે હદિયો આપ્યો તેને પાળ્યા હતા, એને ઇમામ હુસૈને મોટું કર્યા। પછી જ્યારે એ લાયને પાડીને પછી મોકલાઈ જશે જંગલના અંદર, અને જ્યારે આશુરા પસાર થઈ ગયું, શામે ગરીબા પસાર થઈ ગઈ, ઇમામ હુસૈનના લાશના બધા પામાલ કરવામાં આવ્યું। પછી જ્યારે રાત થઈ, એ રાતનો કોઈ પહેરો દેવાનો નહોતો, જ્યારે જેના પહેરો દઈ રહ્યા હતા, અને જણાવે ફિઝાએ પોતે અહીંયા આવ્યા આ જગ્યા ઉપર, અહીંયા ખૈમાકા પાછળ સલામતી અહીંયા આવે છે, અને આવીને આવાજ આપે છે, લિયોની સ્ટેટને આવાજ આપે છે કે તું અહીંયા આવ અને જનાબે ઇમામ હુસૈનના લાશા અને બીજા તમામ લાશાની હિફાજત કરજે, કે આપણે કાલથી અમે જઈ રહ્યા છીએ કૂફા અને શામ તરફ। બયાન કરે છે કે અમે કાલથી કૂફા અને શામ તરફ જઈ રહ્યા છીએ, હવે તારી જિમ્મેદારી છે કે તું એમની લાશાની હિફાજત કરજે, એમને કોઈ જાતની તકલીફ ના થાય, એમને કોઈ જાતની અસર ના થાય, એમને કોઈ જાતની પ્રોબ્લેમ ના આવે। તો જનાબે ફિઝાના આવાજ ઉપર સાંભળીને શેર અહીંયા આવે છે, લિયો લાયન અહીંયા આવે છે, અને એના પછી જે છે એ હિફાજત કરે છે જ્યાં સુધી કે આ લોકો કૂફા અને શામ તરફ રવાના થયા, અને શેર જે છે દરરોજ આવીને અહીંયા હિફાજત કરતો। એ જગ્યા છે જનાબ ફિઝાની, અને જનાબ ફિઝા અહીંયા લાયનને આવાજ આપે છે, એ જગ્યા છે। પોતાની હાજત માંગો, દુઆ માંગો, ચૂમી નહીં ચલા બહાર નીકળી જાઓ। આપણે હાલતે અબ્બાસ સલામના બાજુ તરફ જઈ ગયા છે। زیارت محمد صلوات مائک ایک کوئی زیارت نہیں ہے، زیارت پڑھا نہیں مائک کیا بھیا ہلو آؤ جی، آؤ زیارت کر کے ہوگی، آؤ جی، آؤ زیارت کر کے مولانا جلدی کرے مولانا، واپس آؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جس مقام پہ آپ حضرات کھڑے ہیں، اس مقام کو مقام شیر فضا، راستہ چھوٹے راہ باز کو نہیں، راہ باز کو نہیں کمارا دلشن، راہ باز کو نہیں یار آگے آگے میں آگے لے آؤں، آگے نکل گلی، آگے نکل گلی۔ اور جس مقام میں کھڑے ہوئے ہیں، اس مقام کو مقام شیر فضا کہا جاتا ہے۔ مولا علی امام حسن امام حسین علیہ السلام کے لیے ایک چھوٹا سا شیر لے کر آئے تھے جس سے آپ کھیلا کرتے تھے۔ چھوٹا سا شیر لے کر آئے تھے مولا علی آپ لوگوں کے لیے، اور یہ ہے کہ وہ شیر ساتھ ہی ساتھ امام حسن امام حسین کے بڑا ہوا، امام حسن امام حسین کے ساتھ وہ شیر بڑا ہوا۔ پھر بعد میں یہ ہوا کہ جس وقت امام حسین علیہ السلام آپ روانہ ہو گئے کربلا کے لیے، تو ملتا ہے کہ وہ شیر بھی پیچھے پیچھے آپ لوگ کے ساتھ ہی ساتھ اس جگہ پر کربلا میں آ گیا تھا، اور آنے کے بعد کربلا میں اس نے مولا حسین اس جگہ پہ جہاں ہم لوگ خیمہ گاہ گئے، وہاں یہ سب جنگلی ایریا، یہاں پر پیڑ تھے، درخت تھے، سبھی جگہیں، اس جگہ شیر اس جگہ آ کر اس جگہ پر رہتا تھا۔ ملتا ہے روایات میں کہ جب مولا حسین کی شہادت ہو چکی، جب مولا شہید ہو گئے، تو شہادت کے بعد جب قافلہ جانے لگا ہے یہاں سے، تو بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے کہا کہ ابو الحارث کو بلاؤ۔ ابو الحارث اس شیر کا نام تھا، ابو الحارث کو بلاؤ، حسین کے بچپن کے ساتھی کو بلاؤ، کہو کہ اپنی دوستی کا حق ادا کرے۔
ہم لوگ یہاں سے جا رہے ہیں اور تمہارے دوست کا جنازہ بے گور و کفن پڑا ہوا ہے، کوئی نہیں جو حسین کے جنازے کی حفاظت کر سکے۔ ملتا ہے روایات میں کہ وہ شیر جناب فضہ سلام اللہ علیہ اس مقام پہ آتی ہے، اور آنے کے بعد آپ نے آواز دی کہ اے حارث کہاں ہو، اے حارث کہاں ہو کہ حسین کا لٹا ہوا قافلہ کربلا سے جا رہا ہے، آؤ اور آ کر اپنے دوست کی حفاظت کرو۔ ملتا ہے روایات میں کہ وہ شیر آتا ہے، اور آنے کے بعد 3 دن تک مولا حسین کے جنازے کی حفاظت کی ہے اس شیر نے، 3 دن تک جنازے کی حفاظت کی ہے۔ اور اس مقام کو، اس جگہ کو جناب فضہ کے نام سے اسی لیے یاد کیا جاتا ہے کہ مقام فضہ اس جگہ کو کہا جاتا ہے۔ زیارت یہاں پر لکھی ہوئی ہے جناب فضہ سلام اللہ علیہ کی، آپ لوگ سامنے ذرا سا ہٹ جائیں تاکہ زیارت پڑھا دی جائے۔ زیارت کی نیت کرنے کی زیارت پڑھتے ہیں جناب فضہ سلام اللہ علیہ کی اپنی طرف سے، اپنے والدین کی طرف سے، بیوی بچوں کی طرف سے، دوستوں کی طرف سے، آبا و اجداد مرحومین کی طرف سے، ایسے حضرات جن کے دلوں میں تمنا ان جگہوں پہ آنے کی پہنچ نہ سکے، ان سب کی طرف سے نیابتاً قربتاً الی اللہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی من سماہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، السلام علی فضة ام العلم والحکمہ والمتکلمۃ بالقرآن وحبیبۃ الفاطمۃ الزہراء وزینب الحوراء سلام اللہ علیہا، الصابرة المحتسبة المجاهدة الشهادات على ما عانوا أهل البيت من الظلم والعدوان، السلام على من ضيف الرسول صلى الله عليه وآله وعلى بيته عليهم السلام، على مائدة وطعمها من الجنة في ليلة شهر رمضان المبارك۔ السلام کی پریشانی کو دور کر دے، پروردگار ہے معبود جو مشکل گرفتاری میں ان کی مشکلات اور گرفتاری کو برطرف کر دے۔ یہ پروردگار ہے پالنے والے، ہم میں جو حاجت مند ہیں، جو شرعی حاجتیں لے کر آئے ہیں، یہ پالنے والے ان مقامات کے صدقے میں ان کی تمام شرعی حاجتوں کو پورا کر دے۔ پروردگار ہم میں جو بے اولاد انہیں صاحب اولاد کر دے۔ اے معبود بحق حضرت زہرا سلام اللہ علیہ، بحق اس مقام کے پروردگار پالنے والے ایسے حضرات کے جن کی اولاد جو اپنے رشتوں کے، بچوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہے، پاوربود ہے پروردگار انہیں برابر کے رشتے عنایت کر دے۔ معبود جو ہمیں مریض بیمار ہے، علیل ہے، ان کو شفائے عاجل عنایت کر دے۔ ہمارے زمانے کے امام کا ظہور کر دے، ہم سب کو ان کے اعوان اور انصار میں شامل کر دے۔ آپ لوگ ایک سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے اور صلوات پڑھتے ہوئے نکل چلے باہر۔ محمد وآل محمد واجل۔ یہ جس مقام پہ ہم لوگ کھڑے ہیں، یہ جو جگہ ہے، یہ جہاں ہم لوگ کھڑے ہوئے ہیں، یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں مصائب میں آپ لوگ سنتے ہیں کہ جناب عباس جب دونوں بازو آپ کے قلم ہو گئے، جب دونوں بازو کٹ چکے جناب عباس کے، تو مشکیزے کو آپ نے اپنے دانتوں میں دبایا۔ ادھر گھما دو۔ مشکیزے کو آپ نے اپنے دانتوں میں دبایا اور خیمے کی طرف روانہ ہو گئے۔ خیمہ ادھر تھا، خیمے کی طرف روانہ ہو گئے۔ پیچھے ہو جاؤ، تار اب جاؤ پیچھے، اب ایک دم صحیح ہو جائے کہ جناب عباس، یعنی خواہش یہ تھی جناب عباس کی کہ کسی طرح سے یعنی پانی خیمے میں پہنچ جائے، اور جناب عباس یہ ہے کہ گھوڑے کو اپنے بھگاتے ہوئے اس جگہ پہ جب پہنچے، یہی جہاں ہم لوگ کھڑے ہوئے ہیں، یہ وہ جگہ ہے جسے مقام مشق کہا جاتا ہے۔ یہ سامنے مولا عباس کا سامنے حرم اقدس ہے، اس کو باب القبلہ بولتے ہیں، اس جگہ کو باب القبلہ یعنی قبلہ رخ ہے۔ یہ اس جگہ پر مشق سکینہ پر تیر لگا ہے، اس جگہ پر
मश्क सकीना पर तीर लगा है। और यह कि यही कुछ दूर जनाब अब्बास गए और घोड़े का रुख यहीं से मोड़ लिया। फिर उसके बाद जनाब अब्बास खैमे की तरफ नहीं गए। और पहले जो आए होंगे लोग ज़ियारत के लिए चंद साल पहले, तो यहाँ देखा होगा यहाँ पे एक दायरा बनाया गया था और उसमें बीच में मश्क लगी थी। वो मश्क निकाल के जनाब अब्बास के अंदर दरवाजे पे लटका दी गई है। जनाब अब्बास के अंदर जब जाएंगे, जैसे एंट्री करेंगे, जरी से पहले सामने दरवाजे के ऊपर, मेन डोर के ऊपर अंदर उस मश्क को जो यहाँ थी, उस मश्क को निकाल के वहाँ पर लगा दिया गया है। अंदर वो मश्क मौजूद है। बहरहाल हम आपने सुन बड़ी आसानी से लिया, सुन बड़ी आसानी से लिया कि तीर चला मश्क सकीना छिदी। लेकिन अजीजों जरा अब्बास के कलेजे से पूछें, जरा मौला अब्बास के दिल से पूछें कि किन हसरतों के साथ अब्बास पानी भर के लेके चले थे। अब्बास पानी भर के लेके चले, पहुंचते हैं कुछ दूर जहां पर मौला का दाहिना बाजू कलम हुआ, मश्क डगमगाई, बाया बाजू कलम हुआ, मश्क हिली मगर गिरने न दी। सकीना वहां दूर से दर खैमा, वहां से दूर जहां हम लोग होके आ रहे हैं, वहां से आगे आ चुकी थी बच्चों को समेटे हुए। बच्चों आओ जल्दी आओ, देखो देखो अब्बास का परचम आ रहा है, अब्बास पानी लेकर आ रहे हैं, वो पानी लेकर आ रहे हैं। बच्चे अलम सामने, अलम जैसे हिलता है बच्चे हिल जाते हैं। अलम में जरा सी जुम्बिश होती है, बच्चे तड़प जाते हैं। बच्चे दुआ कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द पानी पहुंच जाए। रवायत का फिक्रा है कि जब इस जगह पर पहुंचा है, जब इस जगह पर पहुंचा है अलम अब्बास, अब्बास अपने दांतों में मशकीज़े को दबाए हुए थे। हुरमुला बिन काहिल दूर से देख रहा था। एक तीर चला, मश्क सकीना पर लगा। मश्क सकीना पर लगना था। जैसे जैसे पानी बहता गया, अब्बास ने रुख मोड़ लिया। पानी बहता गया, अब्बास ने रुख मोड़ा। मिलता है रवायात में कि अब्बास यहाँ से अभी कुछ ही दूर पर पहुंचे थे, कुछ ही दूर पर पहुंचे थे। अब्बास के दोनों बाजू कट चुके हैं। अब्बास अभी कुछ दूर पर पहुंचे थे। एक शकी आगे आता है और आकर कहता है, अब्बास मैंने सुना है तुम बहुत जरी हो, बहुत बहादुर हो। देखिए ये दुनिया का दस्तूर है, अगर कोई किसी फन का माहिर हो और अगर कोई उसे चैलेंज कर दे आकर सामने, तो वो इंसान उस चैलेंज को कबूल करने को तैयार हो जाता है। कुर्बान अब्बास तेरी गुर्बत से। मिलता है कि जनाब अब्बास जाकर कहता है, अब्बास मैंने सुना कि बड़े जरी हो रहा। अब्बास अब्बास मैं तुमसे लड़ने के लिए आया हूँ। मिलता है रवायत में कि अब्बास ने एक अंगड़ाई ली, अब्बास ने एक अंगड़ाई ली और कहते हे शकी, उस वक्त कहा था तू जब मेरे दोनों बाजू थे, जब मेरे दोनों बाजू थे। इस लईन ने एक गुर्ज का वार किया सर के ऊपर। अब्बास जमीन पर गिरे, अब्बास जमीन पर गिरे। आवाज दी, आवाज दी, ए आका सलाम, ए आका गुलाम का सलाम आखिर कबूल कर ले। रवायत का फिक्रा है, जैसे ही आवाज को सुना, आपके भी भाई होंगे, भाई भाई से कितनी मोहब्बत करता है, भाई भाई की ढारस होता है। और जिसका अब्बास जैसा भाई हो, जिसका अब्बास जैसा भाई हो, जो नाजों का पाला हो वो अब्बास, जो वफा का खुदा हो वो अब्बास, जो बीवियों का सहारा हो वो अब्बास, जो हुसैन की ढारस हो वो अब्बास। अब्बास जैसे ही सदा सुनी, हुसैन ने कमर पकड़ ली। जुमला जबान में, ए भैया मेरे, ए अब्बास तेरे मरने से मेरी कमर टूट गई। रवायत का फिक्रा है कि हुसैन चले, हुसैन आते हैं, हुसैन बढ़ते जा रहे हैं। अभी कुछ दूर पहुंचे ही थे, हुसैन झुके, झुकने के बाद कोई चीज उठाई, अपनी हवा में रखी और आगे बढ़े। झुके, जमीन से कोई चीज उठाई, पहुंचा दिया, हवा में रखा। आप समझ गए होंगे, आप समझ गए होंगे, हुसैन ने अब्बास के कटे हुए बाजुओं को अपने दामन में रखा। पहुंचे एक मरतबा अलकमा के किनारे पहुंचे। क्या देखा, जवान भाई है। खुदा किसी भाई को ये मंजर न दिखाए, खुदा किसी भाई को ये मंजर न दिखाए जो मंजर हुसैन ने देखा है। मिलता है हुसैन पहुंचे मौला अब्बास के पास। पहुंचने के बाद अब्बास के सर को अपने जानों पे रखना चाहते हैं, अब्बास सर हटा लेते हैं। जानों पे रखना चाहते हैं, अब्बास हटा जाते हैं। एक मरतबा हुसैन कहते हैं, ए मेरे भैया अब्बास
सुनेंगे जनाब अब्बास क्या फरमाते। देखे विलायत का दिशा देखे। एक मरतबा जनाब अब्बास कहते हैं मेरे आका जो मेरा तीर पेशानी में लगा है, ए आका वो पुष्ट से पार हो चुका है। ए मौला मैं नहीं चाहता कि उस तीर से आपका पैर जख्मी हो जाए। एक मरतबा जनाब अब्बास कहते हैं ये आका मैंने सुना था कि जब मैं दुनिया आया, आखिरी फिक्रा मैंने जो सुना था कि मैं जब दुनिया आया था मैंने सबसे पहले आँख खोल के आपकी ज़ियारत की थी। मौला मेरी ख्वाहिश है कि मैं आखिरी वक्त भी आपकी ज़ियारत करूं। मौला मजबूर हूँ। एक आँख में खून है, दूसरे आँख में तीर है। ए मौला मेरे हाथ नहीं मगर मैं आपको सहमत न देता। ए मौला मैं चाहता हूँ आखिरी वक्त आपका दीदार कर लूं। हुसैन ने आँख से तीर निकाला, दूसरी आँख से खून को साफ किया, हसरत भरी निगाह से आका के चेहरे को देखा। ए आका मुझे अब्बास को माफ कर देना। ए आका अब्बास को माफ कर देना। ए मौला क्या मुझसे राजी हो गए? ए मेरे मौला अब्बास ये गुलाम खड़े हैं। ए मौला आपके गुलाम खड़े हैं आपके सामने, आपकी कलीज़ें खड़ी हैं। मिलता है एक मरतबा हुसैन कहते अब्बास मेरी भी एक ख्वाहिश है। ये अब्बास बचपन से मैंने तेरी ज़बान से फकत आका ही सुना है। बचपन से तेरी ज़बान से मैंने फकत आका ही सुना है। ए अब्बास एक मर्तबा दिल चाहता है मुझे भैया कह के बुला दे। अब्बास ने हिम्मत जोड़ी ज़बान पर फिक्रा लेकर आए। ए भैया हुसैन, ज़बान पर भैया जारी करना था। रूह कफ़स इंसुरी से परवाज़ कर गई मगर वसीयत करके गए हुसैन से। ए आका मेरे जनाजे को खैमे में ले जाइएगा। अरे मैं सकीना से वादा करके आया था, सकीना से वादा वफा न कर सका। ए आका मुझे सकीना से शर्मिंदगी होगी। देखो है दरिया से कब न रहेगा कोई भी प्यासा। बाबा चचा के घर आ रहा है, वो देखो पानी आ रहा है, वो देखो पानी आ रहा है, वो देखो पानी आ रहा है। बोली सकीना नजदीक आओ, ऐ प्यासे बच्चों कुज़े उठा लो। बाबा चचा को घर आ रहा है, वो देखो पानी आ रहा है, वो देखो पानी आ रहा है, वो देखो पानी आ रहा। जो घर में सबसे छोटे हैं बच्चे, पहले उसी को पानी मिलेगा। असगर है प्यासा घबरा रहा है, वो देखो पानी आ रहा है, वो देखो पानी आ रहा है, वो देखो पानी आ रहा है। परवरदिगार है पालने वाले, तुझे कसम देते हैं बाबुल हवाइज अब्बास की। ए माबूद तुझे कसम देते हैं अब्बास के कटे हुए बाजुओं की। ए परवरदिगार शियान हैदर कर्रार की जान माल इज्जत आबरू नामोज के हिफाजत कर। परवरदिगार तुझे कसम देते हैं अब्बास के पालने वाले,
हमारी जियारत को आखिरी जियारत करार मत देना, हमें बार बार इन दरों पे आने की तौफीक इनायत कर। ये मौला अब्बास आपको कसम देते हैं, आपकी भतीजी सकीना की प्यास, आपको कसम देते हैं आपकी शहजादी ज़ारा के नीले बाजुओं की। ये अब्बास आपको कसम देते हैं सकीना के नीले नीले रुखसारों की। ये अब्बास ये ज़ायरीन आपकी खिदमत में आए हैं, बड़ी हाजतें लेकर आए हैं, बड़ी तमन्नाएं लेकर आए हैं, बड़ी दुआएं लेकर आए हैं। लोगों ने इल्तिमा से दुआ कहा है, ये अब्बास हम सबकी जो शरई हाजतें हैं उन्हें पूरा कर दें। ये मौला अब्बास, ये मौला अब्बास, ये मौला अब्बास आपसे इल्तिजा है, अपनी शहजादी की ज़ियारत हमें जल्द अज जल्द नसीब कर दे। ये मौला अब्बास हम में जो मरीज है, बीमार है, अजीज है, उनको जल्द अज जल्द शफाए आजिल इनायत कर दे। मौला अब्बास ऐसे हजरात जो बेघर हैं, जिनके अपने घर नहीं, ये मौला अब्बास आपको कसम देते हैं सकीना की प्यास पे, आपको कसम देते हैं आपकी शहजादी ज़ैनब पे जो मुसीबतें पड़ी उनका। ये अब्बास आपके दर से तो कोई खाली नहीं गया है, ये मौला अब्बास हर कोई आपके दर से हाजिर लेकर गया है। हम तो आपके चाहने वाले हैं, आपके मातमदार हैं, आपके आज़ादार हैं, आपसे मोहब्बत करने वाले हैं। ये अब्बास जितने बेघर हैं उन्हें अपने घर इनायत कर दे। ये अब्बास जो मकरूज हैं उनके कर्जों को अदा से अदा कर दे। ये मौला अब्बास, ये मौला अब्बास इल्तिजा है, तमन्ना है। ये मौला अब्बास अगर ये ज़ियारत हमारी आखिरी ज़ियारत है, ये अब्बास आपसे इल्तिजा है कि खुदा की बारगाह में हमारे लिए आप दुआ करिएगा कि जब ये काफ़िले आपके आका हुसैन की ज़ियारत को निकले, जब ये काफ़िले सरज़मीन करबला को रवाना हो, ये अब्बास हमारे लिए दुआ करिएगा कि हमारी रूहों को आज़ाद कर दिया जाए ताकि हम भी इन ज़ायरीन के साथ शामिल हो सकें। ये अब्बास आपसे तमन्ना है, ये अब्बास आप भी दुआ करें कि मुंतक़िम ज़हरा इमाम ज़माना का जल्द ज़हूर हो जाए, हम सब उनके आवाल और अंसार में शामिल किया जाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना। ये हम लोग इससे पहले जो यहाँ ज़ियारत के लिए आए थे, ये सामने ये होटल, ये देखें ऊपर जो कांच शीशे लगे हुए, इसी होटल में हम लोग रुके हुए थे। ऊपर वही सामने बैठे, सामने से मौला अब्बास का ऐसा लगता था जैसे हरम के अंदर हम लोग बैठे हैं। बहरहाल इस मरतबा जगह भी नहीं हो सकी, अगली मरतबा इंशाल्लाह जो भी काफिला आएगा तो ये सामने होटल है, इसी में इंशाल्लाह इन जगहों पे आकर क़याम किया जाएगा। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम